پاک نے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا ہے. ہاں، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 میں نذر کا لفظ مذکور ہے. تو جو قرآن پاک میں نذر کا لفظ مذکور ہے، وہ نذر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ نیاز کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نظر و نیاز ہے نہیں، نظر و نیاز. تو اب میں دونوں کو کہہ کر کے کہوں کہ دونوں کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو لفظ ہیں مگر یہ نظر کی دو قسمیں یا نیاز کی بھی دو قسمیں آپ کہیے. پہلی قسم ہے نظر شرعی اور دوسری قسم ہے نظر عرفی. اب نظر شرعی کیا ہے؟ نظر شرعی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے چاہے مالی عبادت یا بدنی عبادت کو کرنا. مالی یا بدنی دونوں، اس کو دھیان. اب بدنی عبادت کو جیسے نماز، نفل نماز کی کوئی نظر مان لے، میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے لیے ہم نفل اتنا نفل پڑھیں گے. روزہ دیکھیے، جیسے حضرت علی فاطمہ نے حسن حسین کے لیے نظر مانی. ہاں، غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر اللہ کے لیے، لفظ پہ غور کیجیے، اللہ کے لیے عبادت مالیہ یا عبادت بدنیہ کرنا. اللہ کے لیے عبادت مالیہ یا عبادت بدنیہ کرنا آپ پر جو واجب نہیں ہے، یہ مان لینے کے بعد وہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ڈیپینڈنٹ، بالکل جیسے ہم اگر کامیاب ہو گئے امتحان میں تو ہم 3 روزہ رکھیں گے. اب آپ پر واجب ہے 3 روزہ رکھنا، نہیں رکھیں گے تو آپ کی گرفت ہوگی. یہ شرعی نظر ہے، یہ شرعی نظر ہے. یہ دھیان دیجیے گا، میں اس کی وضاحت تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں، سمجھیے اس کو. نظر شرعی اور نیاز شرعی آپ دیکھیے، جو اللہ کے لیے اللہ سے ثواب کی طلب اور اللہ کے ثواب کے حصول کے لیے غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا نام نظر شرعی ہے. نظر عرفی کیا ہے کہ عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، لیکن اس عبادت کی نسبت جو ہے، نسبت اور نام اللہ کے محبوب بندے کی طرف ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ نیاز غوثیہ نیاز عرفی ہے. اب سمجھ گئے. اب اگر امت کو سمجھانا ہے مجھے ذرا دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال. جیسے حدیث میں بہت سارے ایسی مثالیں ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ کون ہے جو مسجد اشعار میں نماز پڑھے گا، مسجد اشعار میں نماز پڑھے گا تو نماز کی نسبت اس کی طرف کر دی. اور اسی طرح دیکھیے آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کی طرح نماز پڑھو، تو نماز کی اپنی طرف نسبت کی. تو یہاں پر جو نسبت ہے یہ محض تعظیمن ہے اور ادبن ہے، ورنہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی سے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ نماز غوثیہ کا بھی لفظ بہت غیروں نے اس کو عجیب نام دے دیا ہے. ہاں، میں اس کو ایک لفظ صحیح بخاری سے سمجھا دینا چاہتا ہوں. تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ اور علی کو خاص موقع سے نبی نے عطا کی. تسبیح کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ارے اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو یہ نسبت کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. تو ایک ہے نظر شرعی، تو آپ سمجھ گئے، جو خالص اللہ کے لیے، ڈائریکٹلی اللہ کے لیے طلب ثواب اور حصول ثواب کی غرض سے غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا. یہ کلیئر ہو گیا. نظر عرفی یہ ہے کہ مطلب یہ کہ عبادت تو ہر اللہ کے لیے ہے، لیکن نسبتاً جو ہے وہ اللہ کے محبوب، غیر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں ابھی، اللہ کے محبوب بندے کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسجد اشعار میں نماز پڑھنا. آپ دیکھیے نا، مسجد قبلت ہے، مسجد قباء، کیا فرمایا نبی نے کہ جو یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا اتنا ثواب اتنا ثواب. مطلب اس کا مطلب نماز تو نماز ہے.
नमाज पे नमाज है ना, मगर मस्जिद कुबा की खुसूसियत बताया, नबी के साथ उम्रा करे का सवाब मिलता है। जी अब आप समझ रहे हैं क्यों सवाब मिलता, क्यों सवाब मिलता? क्योंकि निस्बत हो गई है उनको बस, तो निस्बत की बुनियाद, वरना 2 रकात तो 2 रकात ही है, उसकी जो क्वांटिटी हैसियत है तो वही है ना। हाँ, तो ऐसे ही नियाज गौसिया या सलाते गौसिया, तस्बीह गौसिया, यानी जिसकी तरफ भी इबादत की निस्बत हो रही है वो महज निस्बत मतलब जाहिरन है, हकीकतन जो है वो अल्लाह ही के लिए इबादत है। इसी से रिलेटेड मैं एक और लफ्ज कह दूं कि जो गौसे पाक का बकरा जी है ना, गरीब नवाज का बकरा, ये निस्बत करते हैं, इनकी किताबों में देखा मैंने, और उन्हीं किताबों की वजह से हमारे बच्चे भी निगेटिव अफेक्टेड हो गए हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि निस्बत से शय मुमताज जरूर होती है, लेकिन शय की असलियत नहीं बदलती। मुमताज जरूर होती है, शय की असलियत नहीं बदलती। हाँ, जैसे काबा पहले भी काबा ही था, काबा पहले भी काबा ही था, नबी तशरीफ लाए तो काबा ही है, पहले मतलब वो अजमत नहीं थी और अब अजमत हो गई, तो शय मुमताज है। हाँ, तो कहना यह है कि जो बकरे की निस्बत जो गौसे पाक की तरफ की गई है, ये निस्बत कर देने से या नाम ले लेने से वो हराम नहीं होता। क्यों? इसलिए कि निस्बत ये रिफातन है, अजमतन है और तबर्रुकन है बस, और हकीकतन अल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ बकरा, चाहे अब्दुल्ला के घर में हो या किसी भी अल्लाह के बंदे के घर में हो, एक जुमला खुल कर बोल दो, अगर किसी हिंदू के घर में भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कोई बकरा ज़बह कर दिया जाए तो वह हलाल है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? जबकि कहा जा सकता है ना, अरे कहां से ला रहे हो, अरे वो गैर मुस्लिम के यहाँ ज़बह हुआ है, तो वो निस्बत तो हो गई गैर मुस्लिम की तरफ, क्या निस्बत से वो हराम हो जाएगा? नहीं, वो मेन ज़बह का देखा जाएगा। इसी से रिलेटेड बात थी, क्योंकि नियाज अभी 11वीं खाना, ये इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, इसलिए मैं इसको वाज़ेह कर दे रहा हूं ताकि जो मिस एक्सप्लेनेशन करते हैं ना लोग, उसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे या हमारे बड़े लोग भी मिस एक्सप्लेनेशन ना हो। निस्बत से मुमताज शय जरूर होती है, हकीकत नहीं बदलती है, हकीकत नहीं बदलती। हाँ, मुमताज जरूर होती है, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी का उन्वान जरूर आता है। जैसे नबी की नमाज का उन्वान अलग है, क्या बात है। एक जुमला कहूं मोहब्बत से, कैच करेंगे आप जी? मोहब्बत की महफिल है। एक मुसल्ला पे 2 इमाम, एक मुसल्ला पे 2 इमाम, एक मुसल्ला पे 2 इमाम, कितनी खूबसूरत नमाज होगी। एक सजदे में और एक कांधे पर, एक पुश्त पर एक सजदे में, इमामुल अंबिया सजदे में और इमाम हुसैन इमाम अली मकाम पुश्त पर। बताइए उस सजदे की अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? जबकि आप जो है सजदे की मिकदार बता दी गई है शरीयत में जी, इतनी देर तक आपको 3 तस्बीह 5 तस्बीह। अब इसमें 5 मिनट भी आप ले लें, कितने बड़े भी मुत्तकी हो जी, लेकिन जो तवालत का जो उन्वान है वहां, और फासिद नहीं, सबसे आला नमाज वही है। आप समझ रहे हैं? तो ये निस्बत ने नमाज को कमाल अता कर दिया, निस्बत ने नमाज को कमाल अता कर दिया है। समझ रहे हैं ना? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हजरत उतबान, जो जरी मतलब ये कि दिखता कम था उनको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूलल्लाह मैं जहां से जहां जाता हूं ना, तो राहों में रास्ते सही नहीं है और मुझे कम दिखता है, तो मैं आ नहीं पाता हूं। ऐसा करें, आप मेरे घर चलिए, जिस जगह पे आप नमाज पढ़ देंगे, अत्तखीज़ हूं मस्जिदन, मैं उस जगह को मस्जिद बना दूंगा। अब आप बताइए, नबी ने पहले भी कहा है कि मेरी उम्मत के लिए पूरी रुए जमीन मस्जिद है, लेकिन मुस्तफा के कदम की निस्बत, सुभान अल्लाह, कि आपका जब कदम पड़ेगा तो अब सजदा वो कमाल को पहुंचेगा, उरूज को पहुंचेगा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। तो निस्बत से शय मुमताज होती है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का उन्वान होता है। हाँ, तो न्याज़े उर्फी और न्याज़े शरई दोनों समझ गए होंगे। एक लफ्ज में इसको अगर समझाना हो ना, तो माली इबादत या बदनी इबादत जो करते हैं ना गौसे पाक के लिए, मसरफ गौसे पाक है, मकसद अल्लाह है।
हाँ, इसको ये भी अल्फाज है, इस तरह तो भी बोलते नहीं अभी उसको नहीं, समझिए इसको। मसरफ मसरफ। यानी खर्च करेंगे हम कादरियों में, हाँ खाएंगे कादरी हजरात, लेकिन मिलेगा खुदा से, सुभान अल्लाह। हाँ इसीलिए कहा मकसद खुदा है, नीयत खुदा है। चाहे किसी मस्जिद में आप नमाज पढ़ो, नवैतुअन उसल्लिया लिल्लाह है, तो मकसद और नीयत अल्लाह से ही है। तो नियाज शरई में भी मतलब हुसूल सवाब का कॉन्सेप्ट है, नियाज उर्फी में भी हुसूल सवाब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां डायरेक्टली है और यहाँ इनडायरेक्टली है, बिल वास्ता है। क्योंकि उर्फी में, हाँ उर्फी में भी समझ रहे हैं, नजर उर्फी और नजर शरई। नजर शरई का ताल्लुक डायरेक्ट हुसूल सवाब अल्लाह से है, और नजर उर्फी में बवास्ते गौसे पाक या बवास्ते अब्दुल कादिर जिलानी, बवास्ते औलिया अल्लाह। समझ रहे हैं ना? हाँ, नियाज के बारे में कुछ गौशीदा नहीं है। हाँ, नियाज जो पर्शियन लफ्ज कहा ना मैंने, नजर और नियाज, अब ये दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता है। नियाज गौसिया अब जैसे कह रहे हैं, तो वही मतलब नजर गौसिया। तो नियाज गौसिया का ये मतलब नहीं कि बकरा लाएं और कहें कि गौसे पाक के नाम से, नहीं, ज़बह तो अल्लाह ही के नाम से है, नियाज गौसे पाक के नाम से। नियाज को माना फातिहा भी कर सकते, आज की जबान में नियाज के माना भी फातिहा भी कर सकते। मतलब ये कि हम कुरान हदीस या जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, मगर मौका गौसे पाक का होगा, निस्बत गौसे पाक का होगा, वसीला गौसे पाक का होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मैंने नियाज गौसिया के मुतालिक सवाल किया था पहला, मुफ्ती साहब ने खोल कर बताया है। नियाज शरई और नियाज उर्फी, नियाज शरई में माली और बदनी डायरेक्टली अल्लाह के लिए करते हैं, और नियाज उर्फी में मकसद गौसे आजम दस्तगीर पीर सरकार और मकसद अल्लाह की रजा रहती है, और नियाज शरई में डायरेक्ट अल्लाह का जो है ना, अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको लेकर जो है ना, आप सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि नियाज ये मंसूब गौसे पाक से कर देते, लिहाजा ये हराम हो जाता। आज उसकी हकीकत सामने आ गई। हमको अब इंशाअल्लाह ताला इसको जितना हो सके समझिए। मैं वो आयत को कोट कर रहा हूँ, सूरह बकरा में और दीगर सूरों में ये आते हैं कि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पर हराम हुआ मुर्दार और खून बहता और खिंजीर का गोश्त, और फिर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ना, जो गैरुल्लाह के नाम पर, इसको देखिए अल्लाह पाक कह रहा गैरुल्लाह के नाम पर, हालांकि आप लफ्ज देखेंगे तो वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और आप जो है दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप अपने फहम से तर्जमा नहीं कर सकते, सही है ना। वमा उहिल्ला, और वो जानवर उहिल्ला पुकारा गया हो, बिही लिगैरिल्लाहि बिही, जो गैरुल्लाह के लिए, बिही जिसको पुकारा गया हो गैरुल्लाह के लिए। अगर सिर्फ यहां पर पुकारना ही मुराद ले ले लफ्जी तर्जमा के हिसाब से, तो मुझे ये बताइए कि एक गैर मुस्लिम के यहां बकरा है, एक गैर मुस्लिम के यहां बकरा है, ठीक है, अचानक उसके घर में वो मतलब परेशानी लायक कोई, जबकि वो 2 साल का बकरा है। आप समझ रहे हैं कितने साल का है वो 2 साल का बकरा है, और 2 साल से उसने काली मां के नाम पर रखा है, दुर्गा पूजा के नाम पर रखा है। ध्यान दीजिए कि कोई भी आकर पूछता बड़ा बकरा अच्छा है, हाँ काली मां के नाम पर ज़बह करना है, दुर्गा के नाम पर ज़बह करना है, अपने बुत के नाम से वो मंसूब किया हुआ बकरा 2 साल से, एक वक्त नहीं, हम तो साल में एक वक्त बोलते हैं वैसे पाक का बकरा। अब जुम्मे देखो, 2 साल से मुसलसल सबको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि ये हमारी देवी देवता के नाम पर हम दशहरा के मौके से, इसके मौके से अपनी मूर्तियों को चढ़ावा देंगे, ठीक है, तो नाम तो लिया है वहां। लेकिन आप गए उसके घर, अचानक उनके यहाँ कोई परेशानी आई, उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पास एक ही चीज है, या तो आप कर्जा दे दीजिए या बकरा खरीद लीजिए। आपने कहा ठीक है दे दो। आप आए और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह कर दिया आपने। अब बताइए पूरी दुनिया के दारुल इफ्ता से पूछिए हलाल है या हराम? जी हलाल, अल्लाह के नाम से जुमा हो। नहीं, हलाल है या हराम? अगर कहते हैं हलाल तब भी सवाल होगा, और कहते हैं हराम तब भी सवाल होगा। लेकिन जो लोग मिस यूज हुए उनको कहना चाहता हूं, 2 साल तक गैरुल्लाह के नाम पर बोला जाने वाला बकरा ज़बह जब अल्लाह के नाम पर हुआ तो हराम नहीं हुआ, और हम एक दिन सिर्फ गौसे पाक का बकरा बोल देने से कैसा हराम कह सकते हैं आप?
जिस बकरे को, उसको दुनिया के, उसको उल्टा भी आप कहते हैं, आपके यहाँ किसी मुसलमान के यहाँ बकरा था, उसको जरूरत पेश आई और किसी हिंदू ने खरीद लिया और अपनी देवी देवता के नाम पर ज़बह कर दिया, जबकि आपने रखा था कुर्बानी के लिए। जो भी पूछता था, हाँ अल्लाह के लिए ज़बह करना है, कुर्बानी देना है, कुर्बानी देना है, साल भर तक 2 साल से आप कुर्बानी अल्लाह के नाम पर, लेकिन जरूरत पेश आ गई, आपने इमीडिएटली उसे बेच दिया, बुत के नाम पर ज़बह कर दिया। अब वो हराम है या हलाल? तो आप सोशल मीडिया के एतबार से अगर देखें लॉजिकली तौर पर तो हराम होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से गैरुल्लाह का नाम उस पर लिया जा रहा है। तो सिर्फ नाम लेने से हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं है, गैरुल्लाह का नाम वक्ते ज़िबा अगर लिया गया है तब हराम है, और अगर गैरुल्लाह का नाम ज़बह करते वक्त नहीं लिया गया बल्कि अल्लाह का नाम लिया गया, चाहे वो ज़बह से पहले किसी के नाम से भी मंसूब हो, वो हराम नहीं। तो ज़बीहा के हराम होने का जो कॉन्सेप्ट है वो है वक्ते ज़िबह का लिहाज, और ये पूरी दुनिया में उसकी तफसीर की गई है। यहीं पर बस वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि वो बच्चे कौसे पाक का बकरा है, 11वीं है, अरे 11वीं का खाना है, निस्बत है उनकी तरफ, तो निस्बत से परेशान ना हो बल्कि निस्बत से चाह करके खाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है आपकी कमाई में कोई खोट वगैरह का भी मामला हो यार, और आपका वो खाना ज्यादातर गिलाजत बन जाए, खून कम बने, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि निस्बत वाला खाना, वो भी वलियों की निस्बत वाला खाना हुए तो खून ही खून बनेगा इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब ने नियाज़ गौसिया के बारे में बहुत ही कंप्लीट तमाम अहाता करके आपकी बज़ में खिदमत में पेश किया है। इसको सुनिए, और ये है ना बहुत ही अहम मसला है जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और लोगों को गुमराह और मिसलीड करते हैं और मिस एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं। और आज का जो रियल एक्सप्लेनेशन मुफ्ती साहब के इस पॉडकास्ट से हमें जा रहा है, ये मैसेज हमको चाहिए कि इसको सुने और इस पर अमल करें। मुफ्ती साहब ये बताइए, मिन दुनिल्लाह और गैरुल्लाह और औलिया अल्लाह, मिन दुनिल्लाह गैरुल्लाह और औलिया अल्लाह, इसका क्या मेयार है और हमको अंडरस्टैंडिंग में क्या इसको समझना चाहिए, कैसा समझना चाहिए? आज ये भी क्वेश्चन आया है। पूरे कुरान में जहां कहीं भी लफ्ज़ मिन दुनिल्लाह है या गैरुल्लाह है, मिन दुनिल्लाह का जो मतलब तफसीरी पैमाना है, आप तनवीरुल मिक़यास मिन तफसीर इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सबसे आला तफसीर है, उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें साफ वाज़ेह अंदाज में है कि जहां कहीं भी मिन दुनिल्लाह है उससे मुराद बुत हैं, तागूत हैं, और जो अल्लाह के मुकाबले में पूजे जाते थे मुशरिकीन के यहां, वो सब मुराद है। ये लफ्ज मैं इतना आम कर रहा हूं कि आप समझिए इसको। क्या कहा मैंने कि मिन दुनिल्लाह से मुराद, गैरुल्लाह से मुराद बुत हैं, मुशरिकीन के लात हैं, उज्जा हैं, मनात हैं, हुबल हैं, जो स्पेशल उन लोगों के होते हैं, उनकी मजम्मत के लिए ये उतरे हैं। अब इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि जहां कहीं भी जो अल्लाह गैरुल्लाह को पुकारते हैं, जो अल्लाह को ये करते हैं, जो गैरुल्लाह को वो करते हैं, वो हमारी तरह है, वो ही है, वो सुनते नहीं, वो ये, तो जहां कहीं भी इस किस्म की आयतें हैं मिन दुनिल्लाह से रिलेटेड, उन सब में वहां बुतों की मजम्मत है, औलिया अल्लाह की मजम्मत नहीं है। इसलिए कि अगर मजम्मत के हवाले से मिन दुनिल्लाह को औलिया अल्लाह पर फिट करेंगे तो औलिया अल्लाह रिस्पेक्टेड नहीं होंगे, वो तो रिजेक्टेड होंगे फिर। जबकि अभी जो आपने तिलावत की आयत करीमा सूरह यूनुस की आयत नंबर 61, 62, 63, तीनों आयतों में रिस्पेक्ट है औलिया अल्लाह का। क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा, औलिया अल्लाह वो है जो बेखौफ है, जो बेगम है। औलिया अल्लाह वो है जो दुनिया में भी उनके लिए बशारत, आखिरत में भी बशारत। अब आप बताइए, ऐसे कहीं पर भी बुतों की तारीफ है? नहीं, बुतों की मजम्मत है। इसका मतलब औलिया अल्लाह जो है ये मजम्मती उन्वान नहीं है, मिदहती उन्वान है। लिहाजा औलिया अल्लाह को मजम्मत के बाब में पेश करना ये तौहीद की रूह से बहुत बड़ा जुर्म है, मुजरिम है वो लोग जो बहुत बड़े, गुमराह तो इजी जुमला कह दिया मैंने, इजी, बहुत बड़े मुजरिम है, जिनके लिए सूरह यासीन की आयत कहूं आपको, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ ए मुजरिमों। औलिया अल्लाह जो रिस्पेक्टेड जमात है उसको तुमने रिजेक्टेड जमात में दाखिल कर दिया। तो मिन दुनिल्लाह या गैरुल्लाह का जहां कहीं भी
ये कॉन्सेप्ट या जुमला आए कुरान में या हदीस में, जहां कहीं भी, उससे हर फर्द को ये समझना चाहिए कि वो बुतों के बुत मुराद हैं, वो परस्तिश जो गैरुल्लाह के अपोज में किए जाते थे, जिनकी इबादतें की जाती थी, वो सब मुराद है। यानी लात है, उज्जा है, मनात है, हुबल है, जो स्पेशल है। ठीक है, और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि कुरान की आयत जो है कब उतरी है? आज थोड़ी ही उतरी है। कुरान तो सहाबा के जमाने में उतरी है ना। दो ही किस्म थी कुरान की उतरने की, या तो सहाबा की तारीफ में या फिर काफिरों की मजम्मत में। अब जाहिर है अगर आप मिन दुनिल्लाह को गौसे पाक पर फिट कर रहे हैं तो गौसे पाक तो 500 बरस के बाद तशरीफ लाए दुनिया में, अब आयत इन पर कैसे फिट कर सकते हैं आप? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप भी तो कुरान के जरिए से इनको आप औलिया अल्लाह में शामिल कर रहे हैं, जब वो ना है तो उनको ये कहिए कि हाँ आप फिट कीजिए, लेकिन बुत वाली आयत को बुतों वाले जैसे नजरिए रखने वालों पर। हम अब्दुल कादिर मानते हैं गौसे पाक को, माबूद नहीं मानते। अरे नाम ही में करामत है, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, समझ में आ जा रहा। अब्द अब्द बोलते हैं बंदे को, जो बंदा होगा वो माबूद नहीं होगा। अब्दुल कादिर ही करामती नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहना यह है कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, ये सब रिस्पेक्टेड जमात हैं, ये महबूब हैं अल्लाह के। तो वो औलिया अल्लाह है, ये महबूबुल्लाह है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और मिन दुनिल्लाह और गैरुल्लाह ये आदाउल्लाह है, ये अल्लाह के दुश्मन है, रिजेक्टेड जमात है। लिहाजा उन आयतों को इन पर फिट करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और वो बारगाह खुदाबंदी और अदालत रब्बानी में बहुत बड़े मुजरिम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने सवाल किया था मिन दुनिल्लाह गैरुल्लाह और औलिया अल्लाह के बारे में। जो सारे कुरान में मिन दुनिल्लाह और गैरुल्लाह जहां पर आया है वो लात, उज्जा, मनात और जो बुत है वो है, और जो उस पर ही जो है ना आज ऐसी तफासिर करते हैं कुछ ऐसे लोग, और लोगों को गुमराह करते हैं जो औलिया अल्लाह को पुकारना भी गैरुल्लाह करते हैं ना। वो जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं वो जहन्नमी है, वो गैरुल्लाह नहीं सुनते हैं, ऐसी सब तर्जमा करके वो उम्मत को कहिए आप कि हमारे वो बच्चे जो इस तरह की वीडियो देखते हैं और कुरान की आयत को कोट करके जो यहूदियत प्रमोट किया जा रहा है, उससे समझिए कि अगर कोई भी अल्लाह के महबूब बंदे पर निगेटिविटी पेश कर रहे हैं तो समझ जाइए कि गलत एक्सप्लेनेशन मिस एक्सप्लेनेशन है, मिसलीड करा जा रहा है, लोगों को गुमराह करा जा रहा है, औलिया अल्लाह से दूर करा जा रहा है। क्योंकि वो आयतें जहां पर मिन दुनिल्लाह कुरान में हदीस में जहां पर आया, गैरुल्लाह कुरान हदीस में जहां पर आया, उस मजम्मती उन्वान है, वो बहुत बड़े मुजरिम है। वह मिन दुनिल्लाह और गैरुल्लाह पर औलिया अल्लाह को फिट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ये मिस एक्सप्लेनेशन है। रियल एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में, और जो अहले सुन्नत के जो अलमबरदार औलिया उलमा इकराम है उनके सुनिए, ताकि तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। आप भी कुरान के आयत जी जी, सूरह यूनुस में आयत नंबर 61, 62 to 63 में अल्लाह ताला औलिया जी। अच्छा, जानवर कब खाया जाता है? जानवर ज़बह से पहले या ज़बह के बाद? ज़बह के बाद खाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने पीने की बात कर रहा कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, मतलब जानवर खाने की बात कर रहा है जी। तो अब जिसको कहा गया है कि गौसे पाक का बकरा है, अब वो हराम कैसे हो जाएगा? वहाँ खाने की बात हो रही है, तो चल फिर रहा है जानवर। बेशक बेशक, अकल देखिए, चल फिर रहा है जानवर जी। तुम्हारे ऊपर हराम है मुर्दार, मुर्दार जो का वो मरेगा तब ना, बराबर सही है ना जी। इसी तरह बहता खून, इसका मतलब जमा होकर बहेगा तब ना जी। इसी तरह इसका गोश्त खंजीर का गोश्त, तो जो खाना चाहेगा उसके लिए ना होगा जी। और उसके बाद कहा जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, नाम को सिर्फ लेने जो अल्लाह के अलावा के नाम पर जो, अरे अल्लाह के अलावा के नाम पर जरा हम तो ले रहे हैं बहुत सारे जानवर जी। ये लोग आयत थोड़ी जाता है, खाने का ताल्लुक ज़बह के बाद है। इसका मतलब ये हुआ कि आयत बता रही है कि वक्ते ज़िबह अगर नाम खुदा का लिया गया हो तो खाओ। सुभान अल्लाह, वक्त ज़िबा खुदा का नाम लिया है तो वो हलाल होता है। और मुफ्ती साहब ने उसकी तशरीह में तर्जुमा बताया है, मुर्दार का गोश्त, बहता खून और खिंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह पर जो ज़िबा होता है वो हराम है। बाकी सब निस्बत से शय मुमताज होती है, हकीकत नहीं बदलती। और सूरह यूनुस में तो मुफ्ती साहब ने बताया औलिया अल्लाह की शान अल्लाह ताला ने बयान किया 62-63। औलिया अल्लाह रिस्पेक्टेड जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरा और तीसरा सवाल मुफ्ती साहब, टाइम करीब है हमारा पॉडकास्ट खत्म होने को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स का यही उनकी 35 मिनट से कम ड्यूरेशन है, ताकि हम पूरा वीडियो देख सके। इसी ख्वाहिश की बिना पर हम, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, ताकि जो है ना हमारे जो मुस्लिम नौजवानों में जो है ना एक चीज फैल रही है, वो गल्फ अफेक्टेड है, और वो लोग जो है ना क्लिप्स देख के सोशल मीडिया में जो है ना इतना टाइम अपना पास करते हैं, कभी ऐसे वीडियोस आ जाते हैं तो इस्लाम और अपने अकीदे को बदलने की कोशिश, और उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि वो लोग उलमा से रब्त नहीं पैदा करते, सही उलमा से रब्त पैदा नहीं करते, और गुमराह होते हैं, और लोगों को भी बताते ये नहीं है इस्लाम में, कंफ्यूज लाइफ जुगाड़। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, करामत औलिया अल्लाह कुरान और हदीस की रूह से इसका मेयार क्या है, और हमको क्या समझना चाहिए, और करामत औलिया अल्लाह से ही होती है? ये किताब देखें आप, ये 2018 में ये किताब लिखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि उम्मुत तफासिर, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर को उम्मुत तफासिर कहा गया, जिसको तफसीर कबीर भी बोलते हैं। तफसीर कबीर के हवाले से सूरह कहफ की आयत नंबर 12, उस एक आयत की तफसीर में मैंने 32 पेज पर तफसीर कबीर के हवाले से ये पूरी किताब लिख दी है। अब मैं इसका लुब्बुल-लुबाब बस पेश कर दे रहा हूं। इससे तो इतना समझ गए होंगे आप कि करामत का जो कॉन्सेप्ट है वो कुरानी कॉन्सेप्ट है। अब हदीस रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, क्लियर बात है, कुरान मुकद्दम है नहीं। इसी तरह सूरह नमल में आसिफ बिन बरखिया की करामत का जो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है, पलक झपकते। हजरत मरियम के हवाले से देखें आयत नंबर 37 या 38 में देखें कि बेमौसम के फल का आना, ये हजरत मरियम की करामत है, सही है। मगर एक बात जो मैं कह रहा हूं, कुछ लोग जो ढकोसला कहते हैं उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूं कि ये कैसा जी, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये अकल में नहीं आने की चीज है। तो यही चीज की मैं वजाहत कर दे रहा हूं। याद रखिए, अकल में ना आने की 3 किस्में, अकल में ना आने वाली चीज तीन तरह की है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊँटनी का वाक़या कुरान पाक में है, जो कहां से पैदा हुए? पहाड़ से। अब पहाड़ से ऊँटनी पैदा होती है? नहीं। अकल में आने की चीज है? नहीं है ना। अब जरा इसको देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मुर्दे आते थे, आप छू कर देते थे, जिंदा हो जाते, जबकि ये मुर्दे जिंदा करना किसकी शान है? अल्लाह की, नबी की। अब यह हजरत ईसा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में इसका भी जिक्र, मैं कुरान पाक अभी बता रहा हूं आपको। अब इसी तरह देखें आप अल्लाह के महबूब बंदों के पास, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात देखिए। जब आपके विसाल का वक्त हुआ तो आपने अपनी बेटी आयशा को बुला करके कहा था कि तुम्हारी एक और बहन है। अपनी दूसरी बीवी को कि मैं उनके पेट में देख रहा हूं कि लड़की है। अब आप पेट में देखना, यालमु माफिल अरहाम, तो अल्लाह की शान है, और अबू बकर सिद्दीक तो नबी भी नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। तो अब मैं ये 3 चीज देख करके जहन दे रहा हूं। पहली जो बात है, ऊँटनी की जो बात है, उसे कहते हैं अक्ल में ना आने वाली चीज है, कुदरत कहते हैं उसे। और अक्ल में ना आने वाली चीज है ईसा के सामने, मोजेजा कहते हैं उसको। और अक्ल में ना आने वाली चीज है अबू बकर के सामने, करामत कहते हैं। क्या कहने, क्लियर हो गई बात। अब मैं ये मिसाल दे करके जहन देने जा रहा हूं कि करामत हक है, और करामत कोई ढकोसला नहीं, क्योंकि करामत मजहर मोजजा है। मोजजा का लाजमा है। यानी अगर अल्लाह से कोई फेल सरजद हुआ, यानी जिस फेल की निस्बत अल्लाह की तरफ हो और अक्ल में ना आती हो, अक्ल में ना आती हो, ये बात ध्यान रखें। जैसे बगैर सुतून के छत डाल सकते हैं आप, लेकिन आप देखिए आसमान बगैर आमदीन तरोना, खुद कुरान कहता है, तो अक्ल में तो नहीं आती है, इसको कुदरत कहिए आप। अब आखिरी लफ्ज में बोल रहा हूं कि बिलीव करने वाली चीज है कुदरत,
बिलीव करने वाली चीज है मोजज़ा और बिलीव करने वाली चीज है करामत। मानना है, बिलीव करना। हाँ, अब जो लोग इनको ढकोसला कहते हैं वो दर हकीकत करामत के मुनकिर नहीं बल्कि कुरान के मुनकिर हैं, मोजज़ा के मुनकिर हैं, कुदरत के मुनकिर हैं। समझ रहे हैं? ये तो पॉजिटिव मसला हुआ, ठीक है। मगर एक नेगेटिव मसला भी कि हर शख्स से करामत का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। करामत के लिए शर्त है ईमान वाला होना और साहिब तकवा होना, यानी वली होना। क्योंकि अब एक मिसाल देंगे तो पंडित भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, घरों के यहां भी तो हो रहा है ना, सिफली अमल करने वाले भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दो किस्में और हैं, अक्ल में ना आने वाली चीज की दो किस्में और है। अगर आम मोमिनीन से कभी इम्पॉसिबल, कोई एक डॉक्टर है, मोमिन है, उसने कहा मैं देखता हूं आप टेंशन न लीजिए, ठीक कर दिया उसने, तो ये आम मोमिन से अगर कोई अक्ल में ना आने वाली चीज, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए तो उसको कहते हैं माऊनत। माऊनत, मीम आइन वाव नून ते, माऊनत। और अगर काफिर, हिंदू, पंडित ये सबसे ऐसे फेल सरदर्द हो जाए जो अक्ल में ना आए, उसे कहते हैं इस्तिदराज। इस्तिदराज, उसे क्या कहते हैं? इस्तिदराज। इस्तिदराज। अच्छा, एक किस्म और मुझे याद आ रही कि नबी से अगर ऐसा फेल इजहार नबूवत से पहले जाहिर हो तो उसको बोलते इरहासात। मैं इतना लंबा इल्मी बात ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, बस इतना कहूंगा कि करामत औलिया हक है, मगर करामत औलिया हक है। औलिया की करामत कौन है? वो सहाबा है, वो अहले बैत है, अब गौसे पाक है, गरीब नवाज है, बंदा नवाज है, ये सब जो फेमस और एकदम गारंटेड औलिया अल्लाह हैं, इनसे रिलेटेड बात जो अक्ल में ना आए, चाहे वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती का मसला हो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। औलिया की करामत हक है। मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने देखा, वह हक है, क्योंकि नबी औरत नबी नहीं होती, वली होती, और वली से रिलेटेड चीज अक्ल के खिलाफ जो जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। करामत अजमत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तकवा और ईमान वजह करामत है। वजह करामत क्लियर हो गई? इसके साथ साथ विलायत का भी कॉन्सेप्ट। हाँ, विलायत तो सुभान अल्लाह, जो आयत आपने तिलावत की है वही विलायत है। जो आयत तिलावत की अला इन्न औलिया अल्लाह, तो औलिया अल्लाह का कॉन्सेप्ट भी तौहीदी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब करामत हक हो गई तो करामत तो वलियों से ही होगी ना, तो वली ऑटोमेटिक है, क्योंकि करामत ताबे वली है, ताबे वली है। तो जब ताबे चीज हक है तो जिससे रिलेटेड जो चीज होगी वो भी तो हक ही होगा। तो औलिया अल्लाह का भी कॉन्सेप्ट जो है, ये असल कंफ्यूजन कहां है ये मैं बताने जा रहा हूं। कंफ्यूजन ये है कि आजकल जो दड़मुंडे लोग, बाप दादाओं के गद्दे पर बैठने वाले लोग, 5 अंगूठी पहन करके, बड़े बड़े मनका लगा करके गद्दों पर बैठने वाले लोग जो अपने आप को वली समझ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर असली वलायत पर भी रिमार्क कर रहे हैं लोग। इसलिए मैंने मिसाल दिया है मरियम की, अबू बकर की, गौसे पाक की, ये सब मिसाल दी। आज के गद्दी नशीनों की हमने मिसाल नहीं दी है। आज तो आपके जेब से पैसे निकालने की बात करेंगे, निकालो निकालो। आज बट कहां रहा है? हमारी जेबों से पैसे जा रहे हैं, हम कंगाल बनने थोड़े आए हैं। गौसे पाक का आप रायचूर की एक सरजमीन है, वहां कमली वाले बाबा मशहूर है। कोई बच्चे सब मांगने के लिए आते थे तो जेब में हाथ डालते थे, इतना मिश्री डाल देते थे। और ये अल्लाह देने वाली जमात है। मगर आप आज जाइए तो देखिए, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इधर गद्दी नशी, उधर गद्दी नशी, तौबा इलाही। तो आजकल मैं लोगों के आस्थानों और खुद्दाम और इन लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं असली वलायत की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहा जो सहाबा अहले बैत है, सहाबा और अहले बैत है, और उनसे रिलेटेड जो हैं, गौसे पाक हैं, गरीब नवाज हैं, इन आस्थानों से कि जो असल हैं वो अल्लाह के जो गारंटेड वली हैं, उनकी करामत हक है। और ये जो जबरदस्ती बैठ करके बने हुए, शरीयत के खिलाफ जाने वाला वली नहीं हो सकता। वलायत की पहली सीढ़ी है शरीयत, क्योंकि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना आमनू ईमान के बाद तकवा है, और तकवा में मुहल्ललात और मुहर्रमात दोनों आते हैं। हलाल चीजों को अमल करना और हराम चीजों से बचना। अब आप बताइए कितना अंगूठी पहनना है आपको? एक नग की कितने माशे की?
9 मासा। 2.5 माशा से कम, अच्छा 2.5 मासा। एक नग की, अच्छा जी। उसमें कुछ भी हो, एक नग की एक अंगूठी पहननी। मगर आप देखिए आज जाकर के बड़े बड़े अंगूठे, नबी से भी ज्यादा कोई महबूब है, सहाबा से भी ज्यादा कोई महबूब है, हुसैन से भी ज्यादा कोई महबूब है? नहीं, ये पहुंचे हुए हैं, ये उनकी अंगूठी है, वो उनकी अंगूठी है। नहीं नहीं, शरीयत के खिलाफ जाने वाला वो हमारा पीर नहीं हो सकता, किसी का पीर नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये इस्तिदराजी उन्वान है ये, और ये भी हक है। जैसे काफिरों और पंडितों से अक्ल के खिलाफ बात सरजद हो जाए तो हम ईमान नहीं लाएंगे। अक्ल के खिलाफ